Hello, friends. Good morning. So, finally, the time has come when we can start our travel series. And today is our first day of our travel. And we have already packed all our required items and the food, all our documents, all the necessary toolkits, the puncture kits, the winter wears, the food items, and also the required amount of water, and along with us lots of good wishes. Yeah, of course, the good wishes from you guys. Yes, let's travel together and let's have this journey a very adventurous one, and let's expect this would be a really exciting journey. Let's pray God that our journey is safely completed, and भोले बाबा हम सब पे अपना कृपा बनाए रखे. So let's get the wheel rolling, and come on, let's start. Hello guys. So let's take the reading. So it's 18092 kilometer, and the time is 4:13, and we are just starting from here at Gurgaon, and today we will be traveling to Orcha and via Agra and Gwalior and Jhansi. So let's get started then. Okay. A few moments later. Hello friends. So we are on the Western Express highway, and we are heading towards Palwal, which is around 46 km from here, and the time is now 5:11. So hold on. So we will be crossing Agra soon. Look at the beautiful sun at Mathura. We are just crossing Mathura. Friends, one interesting fact about the toll gates when you are coming from Western Peripheral Express Highway towards Mathura or Agra. So always be on the left lane if you are not tagged as fast tag. So they will charge you double the price, and you always have to be on the left if you are paying on cash. Somehow by chance, if you are moving into the fast tag lane, they are charging double the price. So better be careful about that. Hope this information is helpful to you guys. Now we are on the way towards Gwalior. We have crossed Agra and we are on the Agra to Gwalior highway. Look at the beautiful highway. It's really clean and very smooth. Enjoy the ride with us. Beautiful, beautiful. हल्की सी धुंध है, देख सकते हैं आप. रायबहार टोल प्लाजा. धौलपुर 64.
Okay, so we have to continue in Dholpur way. So it's 64 km from here. Okay, it's showing Gwalior 125 km. So the approximate time is around 10:40. Now the time is 8 AM in the morning. So we have around 2 hours 40 minutes. So we are going straight ahead. Beautiful, man, beautiful. So today actually the ride in the first day, we did not stop anywhere in Agra or any other place. So the first stop would be at Gwalior. So we would spend some time at Gwalior, sightseeing at Gwalior Fort, and then we will move towards Orcha. So that will be our destination for today. We'll spend our night in Orcha, and also we will have the sightseeing. So I think yeah, let's see how it goes. Enjoy with us, enjoy the ride. 50 km away from Gwalior. This is a beautiful place, and you can see the straight road. Wow, the highway is really nice. And you can see the barren land, the Bihar of MP. Hello friends, finally we have reached Gwalior and we are heading towards the Gwalior Fort. Finally we have reached Gwalior Fort. So Gwalior Fort is said to be built in 18th century, and locals say Gwalior Fort was built by local king named Suraj Sen. He was cured of leprosy by a sage named Gwalipa by offering water from the sacred pond which is now within the fort. Then King Suraj Sen was so pleased that he constructed a fort named after the sage, and it was then known as the Gwalior Fort. Many rulers ruled and controlled this fort, and in 1398 this fort came under the control of Tomars, and among Tomar rulers Man Singh Tomar was the most distinguished ruler. This fort is so vast and it's huge. The fort covers an area of 3 square kilometers. That's a huge structure. And the gate where we entered, you can see. So you have to line up your car like this if you are coming in a 4-wheeler or 2-wheeler. So the gatekeeper would then inform the other person at the top, so that one vehicle is allowed at a time to ride up or ride down the hill. So you can see it is so beautiful. So it seems I was informed that this fort is now open since last 2 months, so you can visit anytime. The vicinity is really beautiful, and especially in the winter morning this looks really beautiful. So let's go inside and see how beautiful it is from inside as well. So we are inside the fort, Gwalior Fort. So with us we have a guide. Okay. So sir, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. माय नेम इज अनिल यादव, मुझे ग्वालियर फोर्ट का मैं गाइड हूँ और पूरा स्टोरी आपको एक्सप्लेन की जाएगी. चलिए सर, तो इस पैलेस को देखने चल रहे हैं सर. इस पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस, और ये पैलेस राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था. ओके. आपने सुना होगा राजा मानसिंह हिंदुस्तान में 2 थे. राइट. एक राजा मानसिंह थे जयपुर वाले, वो सवाई मानसिंह थे, लेकिन उनसे पहले हुआ करते थे ग्वालियर फोर्ट के राजा मानसिंह तोमर. ओके. तो ये महल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था. इनकी टोटल 9 रानियाँ थीं. 8 रानियों के लिए महल बनाया गया था. 9वीं रानी का महल फोर्ट के नीचे सिटी में है, गुजरी महल, वो वहीं रहती थी. 8 रानियों के साथ राजा की अरेंज मैरिज हुई थी, वो इस महल के अंदर रहती थी. राजा की 9 वाइफ थी, जिनसे राजा की लव मैरिज हुई थी.
उनकी शादी करने से पहले 3 कंडीशन थी। राजा की 9 वाइफ थी, वो गुजर कास्ट की थी, जिसके बचपन का नाम था नन्नी बाई, लेकिन उनकी आंखें हिरण के समान चमकदार और सुंदर थीं, तो राजा ने उनका नाम रखा था मृगनैनी। मृग यानी कि हिरण, नैन मतलब आग। राजा से उनकी लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह। तो शादी करने से पहले उनकी 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन में कहा, शादी के बाद आपकी 8 रानियाँ इस पैलेस के अंदर पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूँगी। सेकंड, जब भी आप हंटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए जाओगे, हमेशा साथ में आजू बाजू चला करूँगी, क्योंकि लड़ने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो। थर्ड कंडीशन में कहा, शादी के बाद मुझे अपने गांव का ही नदी का पानी चाहिए, मैं आपके गवाली का पानी नहीं पीऊँगी। और उनका गांव तो यहाँ से 28 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए उनका महल फोर्ट के नीचे बनवाया सिटी में डाउन, गुजरी महल, जहाँ से आप पैदल आए थे गाड़ी लेकर, वहाँ उनका महल है। आइए, तो इस पैलेस के अंदर 8 रानियाँ रहती थी, उनका ही पूरा महल है। नवी रानी इसमें अलाउड नहीं थी। इसको ही बोलते हैं भूल भुलैया। पुराने समय के रानियों को बेडरूम, स्विमिंग पूल, टेलीफोन, सारी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये उनके मैडम बॉडीगार्ड रूम है, यहाँ उनके बॉडीगार्ड सोल्जर रहते थे महल की सेफ्टी के लिए। और जब भी राजा हंटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए जाते थे, तो राजा महाराज पहले एलिफेंट का प्रयोग करते थे। जब फाइटिंग के लिए जाते थे, हॉर्स का प्रयोग करते थे, तो सामने उनका एलिफेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अप एंड डाउन करते थे। ये देखिए, ये एलिफेंट के लेवल का है। यहाँ एलिफेंट खड़ा कर एलिफेंट के ऊपर जो सीट लगाते थे, उसको बोलते हैं औदा। तो यहीं से बैठकर निकल जाते थे। ऊपर देखिए 19 रूम है, 19 कमरे रानियों को बैठने के लिए। जब भी राजा हंटिंग के लिए, फाइटिंग के लिए जाया करते थे, तो वहाँ रानियाँ बैठकर राजा के आने का वेट करती थी। राजा नाइट में आएंगे या मॉर्निंग में आएंगे, तो यहीं बैठकर वेट किया जाता था। बाकी रानियों को आज़ादी नहीं थी मैडम, रानियाँ हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी। अभी आपको महल के अंदर मालूम चलेगा कि रानियाँ किस प्रकार रहती थी। तिवारी जी, ये 4 टिकट, 1 कैमरे का है, वीडियो कैमरे की रसीद। वीडियो अंदर नहीं बनेगी। नहीं, वीडियो अंदर नहीं, ये वो वाला कैमरा मोबाइल वाला है। कौन सा वाला? ये सादा सिंपल जैसे मोबाइल में चलता है ना, वैसे ही है। नहीं, ये कैमरे से नहीं होगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं, रसीद मैंने कटवा ली फिर भी। कोई बात नहीं। तो इस कैमरे की रसीद है। नहीं, इस कैमरे की नहीं चाहिए बोल रहे थे। लो 4 टिकट है। उसके बाद यहाँ लोधियों ने अटैक किया था, इब्राहिम लोधी की फाइटिंग में राजा फाइटिंग में हार गए थे। और जो राजा की 9 वाइफ थी, वो गुजर कास्ट की लड़ाई में मारी गई। उसके बाद 8 रानियों ने इसी महल के अंदर जौहर किया था, जो आपको बताया था। उसके बाद उनकी फैमिली एंड हो गई, फिर यहाँ लोधी रहने लगा। लोधियों के बारे में आपने सुना होगा, पानीपत की फर्स्ट फाइटिंग हुई थी 1526 में, बाबर से हुई थी। तो बाबर की लड़ाई में लोधी को मार दिया गया, वहाँ से स्टार्टिंग हुई मुगलों की। तो सबसे पहले यहाँ बाबर आया था, बाबर ने कैप्चर किया था पूरे महल को। बाबर का बेटा हुआ फिर हुमायूं, जो शासन करता था आगरा और दिल्ली में। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर यहाँ नहीं रहते थे, दिल्ली आगरा में रहते थे। उनका कब्जा होने के बाद उनके बॉडीगार्ड वगैरह, सैनिक वगैरह यहाँ रहते थे। अकबर का बेटा था सलीम। सलीम उसका फर्स्ट नाम था मैडम, बाद में नाम पड़ गया जहांगीर। तो जहांगीर क्या करते थे, जितने भी राजपूत राजा होते थे आगरा और दिल्ली के, उनसे लगान लिया करते थे टैक्स। और जो राजा टैक्स वगैरह नहीं देता था, उनको कैप्चर करके यहाँ रखा गया था। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इसमें पिलर ही पिलर है। इसमें पहले राजा मानसिंह तोमर के समय का शिवा टेम्पल हुआ करता था। उसके बाद जहांगीर ने इसको ओपन जेल बनाया। तो जितने भी राजपूत राजा होते थे, इसमें क्या है, एक एक पिलर से एक एक राजपूत राजाओं को इसमें जंजीरों से बांध कर रखा गया था, कैप्चर करके रखा गया था। क्योंकि वो राजपूत राजा थे, उनको बंदी बनाकर रखा गया था। राजाओं के साथ जो सिक्कों के 6 गुरु थे, हरगोबिंद साहब अमृतसर के, उनको भी इसमें नज़रबंद किया गया था। उनको केवल जंजीरों से बांध के नहीं रखते थे सर, उनको केवल नज़र के सामने रखा जाता था, नज़रबंद। और वो कहीं भी आना जाना अलाउड था। अभी जो गुरुद्वारा देखने के लिए आप जाओगे, पहले सर वहाँ गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ एक सिंपल प्लेन चबूतरा हुआ करता था, ग्राउंड एक। वहाँ गुरुजी महाराज तपस्या करने के लिए जाते थे। और उन्होंने वहाँ तपस्या की थी 2 साल 3 महीने 9 दिन। तो गुरुजी में काफ़ी शक्तियाँ थीं। जब से उन्होंने वहाँ तपस्या स्टार्ट की थी, जब से जहांगीर का क्या स्वास्थ्य करने लगा था। जहांगीर को रात में कभी सपने का गुरुजी का चेहरा दिखाई देता था, कभी शेर का चेहरा दिखाई देता था। तो जहांगीर डर जाते थे। डरने के बाद दिल्ली से ग्वालियर आए और इसी जगह बोले, महाराज मुझसे गलती तो हुई है, मैंने आपको कैप्चर किया है, लेकिन आप यहाँ से आज़ाद हैं। तो गुरुजी ने अकेले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे अकेला नहीं जाऊँगा, आपने जितने भी राजाओं को कैप्चर किया सभी को छोड़ना पड़ेगा। तो जहांगीर ने कंडीशन रखी थी, उन्होंने कहा, मैं सभी राजाओं को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी राजपूत राजाओं को आप अपने कपड़े का दामन पकड़ेंगे, उतने राजाओं को छोड़ दूंगा। कपड़े का दामन पकड़ना यानी कि सिर झुकाना। आप जितने राजपूत राजाओं को अपना सिर झुकाओगे, उतने राजाओं को छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने सभी सोचा कि राजपूत राजा हैं, राजपूत राजाओं से सिर झुकाना यानी कि सिर कुटाने के बराबर माना गया है। तो उन्होंने सभी राजाओं से इकट्ठा पूछा और कहा, आप में से मेरे साथ कौन कौन चलने के लिए तैयार है। तो राजाओं ने भी बोल दिया, महाराज ये कैसी बात कर दी आपने
वैसे तो हम राजपूत हैं, राजपूत राजा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते, लेकिन हम तो आपको गुरु मानते हैं और गुरु के सामने सिर झुकाने में किसी को आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा आपको सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसका समाधान सोच रखा है। तो उन्होंने क्या किया, उसी रात को एक कुर्ता सिलवाया, जैसे 52 कलियों का चोला सिलवाया। चोला यानी कि रेवन फीते, और एक एक रेवन से एक एक राजा को टच कराकर, जो आपने पैदल वाला गेट देखा ना, यहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, वहीं से गुरुजी महाराज सभी राजाओं को निकाल के ले गए और जहांगीर देखता रह गया, क्योंकि जहांगीर ने अपनी कंडीशन रख दी थी। उन्होंने कहा जितने भी राजपूत राजा अपने कुर्ते को पकड़ेंगे उतने राजा जा सकते हैं। तो 52 राजाओं को यहीं से आयत करा के ले गए थे। और गुरुजी अमृतसर के थे, जो आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा। तो जिस दिन गुरुजी अमृतसर पहुंचे थे उस दिन दिवाली का दिन था। तो अमृतसर में दिवाली मनाई जाती है ना सिखों के द्वारा, उन्हीं की याद में दिवाली मनाई जाती है। उन्हीं की याद में गुरुजी ने वहाँ उस चबूतरे पर तपस्या की थी। वहीं सिखों के द्वारा 1970 में गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है। और गुरुद्वारे का नाम आपने बोर्ड पढ़ा होगा, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदियों को छुड़ाया था उन्होंने, इस वजह से गुरुद्वारा बना हुआ है। बाकी यहाँ से सीधा रास्ता गुरुद्वारे के लिए। और लेफ्ट साइड में है सास बहू मंदिर। सास बहू उसका स्मॉल नाम है मैडम, उसका एक्चुअल नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र यानी कि हजारों, बाहु मतलब भुजाएं। भगवान विष्णु को शिव जी का मंदिर था वो। राजा महिपाल के द्वारा उस मंदिर का निर्माण हुआ था 11वीं सेंचुरी में, 1093 में। तो राजा महिपाल की मदर करती थी भगवान विष्णु की पूजा और वाइफ करती थी शिव जी की पूजा। तो उन्होंने ये सोचा भविष्य में इनमें कभी झगड़ा ना हो, इनके अलग अलग 2 मंदिर बनवाए। पहला वाला मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, जिसमें भगवान विष्णु की सभी देवी देवताओं की स्टैचू है, वो मदर के लिए था, उसमें मदर पूजा करती थी और वाइफ शिव जी की पूजा करती थी, उनके लिए छोटा सा टेम्पल है। तो मदर और वाइफ का रिलेशन हुआ सास बहू, एक साथ पूजा करती थी, इस वजह से नाम बिगाड़ दिया सास बहू। एक्चुअल नाम है सास बहू, एक्चुअल नाम है सहस्त्र बाहु, वो भी आप देख सकते हैं इसी टिकट से। फिर आप यहाँ से सीधा राइट साइड में जाएंगे, तेली का मंदिर है। तो सबसे पुराना मंदिर है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था मैडम। राजा मिहिर भोज के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं सेंचुरी में। लेकिन राजा मिहिर भोज जब दक्षिण भारत गए थे, साउथ इंडिया, वहाँ की और रानी थी वो तेलंगाना की थी, दक्षिण भारत की थी। तो उनसे मैरिज करने के साथ यहाँ आ गए थे। तो रानी ने उस मंदिर का स्ट्रक्चर द्रविड़ शैली बनाया, दक्षिण भारत की स्टाइल में, इस वजह से नाम पड़ गया तेलंगाना की वजह से तेली का मंदिर। तो इस वजह से तेली का मंदिर नाम दिया गया है, क्योंकि तेली का मंदिर इस वजह से नाम दिया गया है। तो उनके साथ दक्षिण भारतीय व्यापारी भी आए थे व्यापार करने के लिए, तेल का व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने से उनको जितना ही मुनाफा हुआ, मंदिर का स्ट्रक्चर उन्होंने उन्हीं के स्टाइल में है। आप देखेंगे सासू मंदिर और तेली का मंदिर राइट साइड में है, और यहाँ से सीधा है गुरुद्वारा 1 किलोमीटर राउंड में। तो यहाँ से आप गाड़ी जा सकते हैं, ये टिकट आपका सेम टिकट वैलिड है। ठीक है, ठीक है। सो अनिल जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें ब्रीफ किया। बाकी आप वो स्टोरी थोड़ी बहुत आप थोड़ा सा अपना नाम और आपका फोन नंबर वगैरह दे दीजिए, सो दैट यहाँ पे तो लोग जब आएंगे तो आपसे हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए, मेरा नाम अनिल यादव है, मैं यहाँ का प्रॉपर गाइड हूँ और यहाँ मैं 10 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ जो स्टोरी है वो कुछ मैंने पुराने गाइडों से ही सुनी हुई है, कुछ स्टडी की है, राइट, कुछ ट्रेनिंग के द्वारा मेरे को बताया गया। सो फ्रेंड्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अनिल यादव, ही इज अ वेरी गुड गाइड एंड ही विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ग्वालियर फोर्ट। ओके, थैंक यू so much for watching us and keep tuned. So we will go to the Shastra Bahu temple and then we will go to the Gurdwara. Okay.
now reached Jhansi's fort, Rani Lakshmibai fort. So we are not entering into it, just wanted to show you that this is Jhansi's fort. And if you could see, there is a spike on the fort. From that location, Jhansi Rani Lakshmibai had jumped from the wall to the outside. So just wanted to give a glimpse of it. Now we are moving ahead towards Orcha. That's our final destination for today. See you then. Got this room at Orcha Resort. You can look at this property. So this room we have paid like 5,000 rupees for 2 room, and each room costed us around 2,500 rupees including tax, and that's I think, and breakfast is also included in it. So I think this is pretty much good. So, and 2 bed, you have a mirror with the dressing table, and I don't know what this table is for, and we have 2 cupboards. This property is really good, so I have seen it, and I'll post some pictures of it. It's near to the Betwa river, so you get a very good view in the morning. That's what I came to know. So I'll be posting the pictures of the morning view in my blog, so you can have a look at that. Okay, so with this I'm just ending up today's travel, and finally our destination from Gurgaon to Orcha has been completed. Stay tuned, I have many more in my travel series, so I'll be crossing like 6 states by the end of this travel series. So stay tuned with me. Thank you so much for watching, and if you really like my videos, please share, like and subscribe my videos. Thank you so much.